Welcome back, students, to the second lesson on capacitors. This is Minish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur. In the previous class, we had studied about what is capacitance, and we had learned the ability to store charge or ability to store electrical energy is what is called as capacitance. Units are farad, and the capacity of the entire earth is only 711 microfarad. In today's class, we are going to talk about this beautiful geometry called a parallel plate capacitor. हम देख सकते हैं ये जो blue plate है और yellow plate है, they are parallel to each other. दोनों प्लेट्स का कुछ एरिया है और दो प्लेट्स के बीच में कुछ गैप है, डिस्टेंस है. इन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को हमने ज्वाइन किया है विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, जिसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल ने ऊपर वाली ब्लू प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है एंड नेगेटिव टर्मिनल की वजह से येलो प्लेट हैज एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज. हमने आपके साथ कैपेसिटेंस इक्वेशन पढ़ा था. क्यों है आप वेरी चार्मिंग, Q is equal to VC or you can say C is equal to Q by V. Today we are going to look at कि जो कैपेसिटी है C वो कैपेसिटर की किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है. ओके, तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. और हमारा सिंबल क्या है कैपेसिटर का. जैसे स्टूडेंट्स हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं जब क्लास 10th में, 11th में, 12th में, तो वी नो द सिंबल फॉर अ रेजिस्टेंस इज अ जिगजैग शेप. दिस इज आर. एंड अगर उसी रेजिस्टेंस को हम ऐसे एक एरो बनाते हैं बीच में, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. मतलब a resistance whose value can be varied. Similarly, capacitor also has a symbol, and the symbol of a capacitor is two parallel lines and connections on the two sides, connecting wires on the two sides. Similarly, if you put a arrow mark across the capacitor, this means it's a variable capacitor. By some method we can vary the capacitance of this capacitor. इसकी कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू का नहीं है. दिस मीन्स अ फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर. दिस इज अ वेरिएबल वैल्यूड कैपेसिटर. But still it brings us to the question, on what factors does the capacity of a capacitor depend upon? Our earth also has huge amounts of capacitors around us. जैसे कोई बादल आ जाते हैं ना अर्थ के पास, बादल का जो लोअर सरफेस होता है हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. अर्थ के ऊपर एक इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट 100 वोल्ट पर मीटर. दैट इज एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी. बट इट्स ओके, लेट्स गो टू कैपेसिटर्स ओनली फर्स्ट. तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे मैंने वहाँ प्लेट दिखाई थी आपको, एग्जैक्टली वैसी प्लेट है. वी हैव टू प्लेट्स, द अपर प्लेट and the lower plate both have an individually area of A each, and these two plates are parallel to each other, separated by a distance small d. The upper plate has red positive charges, lower plate has minus Q charge. Upper plate is plus Q, lower plate is minus Q. That means these two plates have equal and opposite charges, and these charges are separated by some space. अगर empty space है तो empty space की permittivity हम जानते हैं, वो तो एप्सिलॉन नॉट होती है. ये थोड़ा 3 डायमेंशनल लुक दे रहा है डायग्राम, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस 2 डायमेंशन. हमने एक प्लेट बनाई, दो प्लेट्स बनाई, ईच ऑफ एरिया A,
Distance between the plates is d. Upper plate is acquired a plus q charge, lower plate has a minus q charge. And we all know that an electric field exists and whose direction is always from plus to minus charge, plus to minus, downward facing electric field. So how do you calculate the capacitance of a parallel plate capacitor? So we start with the introduction. We'll say let us consider two plates, each of area A, separated by a distance small d and having vacuum or empty space between them. Let plus q and minus q be the charge on the two plates. So अगर charge है, area है, तो we can also say it has some surface charge density sigma, that is q by a, right? और जब हमने गॉस लॉ किया था, हमने एक डेरिवेशन किया था, what is the electric field between the plates, oppositely charged plates? तो अपनी कॉपी टर्न करें, देखें, we have done this derivation and we have derived this formula. The electric field between the plates of a capacitor is given by the formula sigma by epsilon naught, where sigma is the surface charge density, which is q per unit area. Q is the charge on any one plate, A is the area. So I can replace sigma by q on epsilon naught A. So electric field is q by epsilon naught A. Pull that as equation number 1. A relation between electric field and potential gradient E is equal to minus dV by dr. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है. So in magnitude terms I can say E is equal to dV by dr. dV means difference in voltage, dr is the distance between the two plates. हमने बैटरी लगाई थी इसको V वोल्ट की, so potential difference is capital V and distance between the plates is small d. So we realize electric field is equal to Vd. Cross multiply कर दें, so we will get electric potential between the plates of the capacitor is equal to electric field between the plates into the distance d between the plates of the capacitor, है ना. तो V वोल्टेज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच में, D उनके बीच का गैप है. So V is equal to E into D. That's equation number 2. हमने अभी E भी निकाला है इक्वेशन नंबर 1 में. E is equal to Q upon epsilon naught A. Let us put equation number 1 in equation number 2. So what will I get? I'll get V is equal to Q upon epsilon naught A into D, right? Now let us cross multiply. Q को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर करते हैं. So Q will be equal to epsilon naught A by D into V. That's equation number 3. But capacitance equation में हमने सीखा हुआ है Q, very charming, Q is equal to Vc. So if I compare Q के जैसा, V के जैसा, C naught क्यों रखा है, एयर है ना इसलिए C naught. So I find comparing equation number 3 and 4, we get the capacitance of a capacitor with air or free space between the plates is given by the expression C naught, which is a capacity, is equal to epsilon naught A by D. क्या सीखा हमने इस फॉर्मूला से? पहली चीज, दैट जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. अगर एरिया ऑफ द प्लेट्स बड़ा होगा, कैपेसिटी भी ज्यादा होगी. अगर हम दो प्लेट्स अलग अलग एरिया की हों, देन एरिया का मतलब होता है द स्मॉलर एरिया. ओके, बट नॉर्मली हम कैपेसिटर्स की जब बात करते हैं तो वी टेक both the plates of the same area. Second learning is that capacitance is inversely proportional to distance between the plates, meaning that अगर प्लेट्स पास पास होंगी, डिस्टेंस कम होगा, तो उनकी कैपेसिटी ज्यादा होगी. एंड एक और फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट. ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताता है ना, अंदर प्लेट्स के बीच में क्या है. So capacitance is directly proportional to epsilon naught
दैट मीन्स कैपेसिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि दो प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है। एयर होगा तो कैपेसिटी सी नॉट आएगी। तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राफ्स अगर हम देखें तो एरिया बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना। गैप बढ़ जाएगा प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। नाउ लेट अस लुक एट अ स्मॉल सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड दिस। तो मेरे पास दो प्लेट्स हैं यहाँ पर। These plates have some area A और कुछ डिस्टेंस है इन दो प्लेट्स के बीच में। और अभी ये कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इसकी कैपेसिटेंस है 0.2 pf, मतलब पिकोफैरेड, 0.22 पिकोफैरेड। अगर मैं ये एरिया ऑफ प्लेट्स जो है ना उसको कांस्टेंट रखता हूँ लेकिन ये डिस्टेंस कम करता हूँ, या ये फिगर पे ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस के ऊपर डिस्टेंस, प्लेट्स पास पास आती जा रही हैं। आप देख सकते हो कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, 0.65 हो गई, 0.79 हो गई, 1.11 तक मैं ले गया इसको, राइट। अब मैं 1.11 पिकोफैरेड कैपेसिटी है इस समय। अब मैं जो एरिया ऑफ द प्लेट्स है ना उसको चेंज करता हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। अब देखो एरिया को बड़ा करने से कैपेसिटी भी बढ़ रही है, 1.77 तक चलेगी। एरिया ऑफ द प्लेट्स को मैं कम करूँगा, यू कैन सी 0.44 पे आ गई। सो हम capacity of the capacitor therefore depends on the dimensions of the capacitor, the distance between the plates of the capacitor and the area of these plates, right। तो मैं इसको थोड़ा गैप लाता हूँ। जैसे पानी के टंकी की कैपेसिटी है, कोई 1000 लीटर की पानी की टंकी है, हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर है। पानी की टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें पानी है। वैसे ही ये कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटेंस जो है इस समय 0.24 पिकोफैरेड है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, चार्ज अभी तक दिया नहीं है किसी ने इसको, है ना। और मैं कैपेसिटर को जोड़ता हूँ किसी बैटरी के साथ, बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आई टू टेक अ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को मैं एक को इधर जोड़ता हूँ, लेट मी जॉइन दिस हियर। अब देखो क्या वोल्टेज है इस समय, 0, क्योंकि मैंने कुछ लगाया ही नहीं अभी तक, बैटरी को तो ऑन ही नहीं किया। लेट मी स्लोली इंक्रीज द वोल्टेज। अब जब ध्यान से देखिए जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, 0.2 वोल्ट हुआ है, तो आप देखो कितनी पॉपुलेशन है चार्जेस की। ऐसे मैं ऐसा ऐसा बढ़ा रहा हूँ, 0.35 किया मैंने, चार्ज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। देखो बढ़ती जा रही है। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ 1 वोल्ट, 1.15 to 1.2 वोल्ट, एंड लेट मी मेक इट मैक्सिमम 1.5 वोल्ट। वोल्ट मीटर भी बताता है हमको 1.5 वोल्ट है, यहाँ से हमने अप्लाई किया इसको, ओके। तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। और कैपेसिटी कितनी है, अभी वही है 0.24 पिकोफैरेड। कितना चार्ज है ऊपर वाली प्लेट पे, इज 0.36 पिकोकुलम्स। और हम देख सकते हैं कि इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये देखो एरोस, इलेक्ट्रिक लाइंस। These electric lines are directed from positive to negative plate। यही होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम अगर क्या करें, अब ये चार्ज हो गया है, अब क्या करते हैं हम, दैट इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। अब मैं क्या करता हूं कि अभी देखो वोल्टेज क्या है, 1.5 वोल्ट। अगर मैं इसकी प्लेट्स को पास लेके आता हूं, देखो वोल्टेज कम होती जा रही है, जैसे से पास आते रहेंगे
तो अट्रैक्शन अच्छी हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उनकी दिक्कत कम हो रही है। दिक्कत कम होने का मतलब वोल्टेज कम होना। दूर ले जाऊंगा तो कैपेसिटी, अब देखें कैपेसिटी को भी फर्क पड़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ गई तो कैपेसिटी बढ़ गई तो मतलब चार्ज भी बढ़ना चाहिए ना। अगर ये बैटरी से जुड़ा होता, कैसे जुड़ा होता, ओके 1.5 वोल्ट है। अब बैटरी के लगे लगे अगर मैं इसको पास लाऊंगा, आप देखेंगे मोर चार्जेस आर कमिंग, मोर चार्जेस आर कमिंग, चार्ज डेंसिटी कितनी ज्यादा हो रही है, राइट। ओके, या लेट मी कीप हियर। तो हमने क्या कुछ कई बातें सीखी यहाँ पे इस सिमुलेशन से, दैट capacity of a capacitor depends on the area of the plates, it depends on the distance between the plates of the capacitor, right। तो अगर यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम कोई मीडियम को ले आए, कैपेसिटर है, अब हम कोई मीडियम डाल देते हैं बीच में, सम मीडियम आया पुट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अ मटेरियल विच इज अ बैड कंडक्टर, तो इंसुलेटर होता है बेसिकली डाइलेक्ट्रिक, बट इसमें इंड्यूस चार्जेस बन सकते हैं। तो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो हमने मीडियम भर दिया, ये हमारा डायग्राम जो हमको बनाना है। तो हमने देखा कि खूब सारा हमने मीडियम डाल दिया, इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम, बाकी तो वही रहा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी रहा, एरिया ए रहा, लेकिन अब एयर नहीं है, आपने कुछ मीडियम डाल दिया, मे बी वैक्स डाल दी या ऑयल डाल दिया या पेपर डाल दिया दो प्लेट्स के बीच में, कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कुछ इंसुलेटिंग मीडियम डाल दिया। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है आपके साथ, जब एयर होती है कैपेसिटेंस तब होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो जब मीडियम आएगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह अब हो जाएगा एप्सिलॉन एम ए बाई डी। So capacitance of a capacitor with medium between the plates is epsilon m a by d, right? But हमने पढ़ा था आपके साथ स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में दैट एक relative permittivity चीज़ होती है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं K। वो क्या होती है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। So अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल फाइंड एप्सिलॉन m विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, या एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू k। So I can replace this epsilon m by equation number 3, that's epsilon naught into k, where k is the dielectric constant. अब मैं k को बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास आता है Cm is equal to k times epsilon naught a by d. But in equation number 1 we have seen epsilon naught a by d is basically the capacitance of a air cored capacitor, मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसके प्लेट्स के बीच में एयर है या वैक्यूम है। सो आई क्लियरली रियलाइज इफ आई यूज इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 4, तो हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस of a capacitor with medium between the plates of the capacitor becomes k times the capacitance with air. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k जो होता है ना, उसकी वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब, ये तो इंटरेस्टिंग बात है, अगर k की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा वाटर के लिए द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज अराउंड 81। सो इसका मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स के बीच में पानी डाल दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी 81 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 to 5 होता है, तो उसका मतलब ऑयल डाल दिया जाए तो 3 से 5 गुना ज़्यादा हो जाती है कैपेसिटी, राइट। तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसको डालने से कैपेसिटी इंक्रीजेस। Do you remember what is the dielectric constant of a metal? It is infinite, right? So let's look at this conceptual problem. What happens if we put a metal slab in between the plates of a capacitor?
तो फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो आप बोलोगे Cm इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर K इनफाइनाइट है तो हमको लगेगा कैपेसिटेंस मेटल डालने से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी, राइट। बट रियलिटी में क्या हो रहा है, अगर हम ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मेटल डाल दें तो हम क्यों बोलते हैं कि कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है? क्या ये अच्छी बात है? बहुत बड़ा लार्ज कैपेसिटर बन गया इनफाइनाइट कैपेसिटी का। प्रैक्टिकली देखो हो क्या रहा है, अगर मैं प्लेट्स के बीच में एक मेटल भर दूं, एक कुछ मेटल भर दूं ये दो ब्लू प्लेट्स के बीच में, तो क्या होगा, बैटरी जोड़ूंगा तो दिस इज लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ये तो मेटल है पूरा का पूरा, वायर्स भी मेटल, अंदर भी मेटल, तो क्या होगा, खूब करंट जाएगा और रुकेगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। सो दिस होल थिंग actually does not behave like a capacitor, it behaves more like a good conductor. तो कैपेसिटी इनफाइनाइट इसीलिए हो रही है, इसका पेट भरता ही नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट चलता रहेगा, राइट। तो पेट भर जाए किसी का, कैपेसिटर बोले बस और नहीं चार्ज लूंगा मैं, तो वी विल से दैट उसकी कैपेसिटी ओवर हो गई है, फुल हो गई है। जैसे पानी की टंकी 1000 लीटर की है, उसमें 1000 लीटर पानी डाल दिया तो वो बोलेगा ना बस मैं फुल हो गई, अगर और डालोगे अब मैं लीक कर दूंगी। वैसे ही हर एक कैपेसिटर की अपनी कुछ कैपेसिटी होती है जिसका एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो इतना चार्ज वो स्टोर कर सकती है, इतनी कैपेसिटी है इसकी, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकती है। ओके, तो let us look at what is the process of charging of a capacitor. How do you charge a capacitor? जब चार्ज करते हैं तो होता क्या है बेसिकली, तो हमने देखिए हमने एक कैपेसिटर लिया, यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब इमेजिन करो अभी अभी जस्ट जोड़ा है, तो व्हाट विल हैपन इज ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे और वो इस कैपेसिटर की प्लेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आगे मान लो, 3 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं। अब ये सामने वाली प्लेट जो है ये तो मेटल है, मेटल में क्या होता है कि खूब सारे चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे होते हैं। तो व्हाट विल हैपन इज पोलराइजेशन, इन नेगेटिव को देखकर ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है इसमें पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का मतलब प्लस और माइनस अलग अलग हो जाएंगे। माइनस नेगेटिव को अट्रैक्शन फील होगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो प्लस वाले इस प्लेट में आ जाएंगे और जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं वो बैक साइड में जाएंगे। और यहाँ क्योंकि ये गुड कंडक्टर है और यहाँ पॉजिटिव बैटरी है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो क्या करेंगे, वो वायर से होते होते पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में चले जाएंगे। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी को वापस मिल जाते हैं फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो इन अ वे देखो तो बैटरी ने ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया ना कोई लिया, बैटरी ने सिर्फ ट्रांसफर किए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो एक प्लेट को बैटरी ने नेगेटिव कर दिया और एक प्लेट को बैटरी ने पॉजिटिव कर दिया। अब आप समझ सकते हो अगर यहाँ 3 नेगेटिव हैं तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों प्लेट्स का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो सेम होता है, लेकिन जो साइन होता है वो ऑपोजिट होता है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू चार्ज। और जैसे जैसे चार्ज इकट्ठे होते रहेंगे यहाँ पे इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे तो डिफरेंस होगा V वोल्ट का। इसकी कैपेसिटर की कुछ कैपेसिटी है C और इसने कुछ चार्ज Q अपने प्लेट्स पे स्टोर किया है। तो अब हम अपनी वापस इक्वेशन को देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू VC। तो कितना चार्ज स्टोर करता है, अगर हमको पता हो कि कितनी वोल्टेज लगाई हमने, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई और क्या कैपेसिटी है उस कैपेसिटर की, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर वोल्टेज अप्लाइड बाय द बैटरी एंड कैपेसिटेंस, we will be able to find out the charge stored on any one plate of the capacitor, right? तो ये Q इक्वल टू VC वाली इक्वेशन हमने एक बार फिर देख लिया आपके साथ। ओके, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इट सेज द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर draw 10 raised to the power of 12 electrons when it is connected to a battery of 10 volt. What is its capacitance?
तो अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाएं, हमने कैपेसिटर बनाया, तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्लेट जो है, राइट वाली प्लेट 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स को आने देती है अपने राइट साइड पे और 10⁻+ पॉजिटिव चार्जेस को ऑन द लेफ्ट प्लेट. सो total electrons gained and lost is 10⁻12. नंबर्स पता चल गया हमको. अब व्हाट इज द चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है चार्ज Q इज इक्वल टू N. N कितना है? 10⁻12. E is the charge of one electron, which is 1.6 into 10⁻−19 coulomb. So total charge on any one plate will be 1.6 into 10⁻−7 coulomb. तो ये स्टेप से हमको Q पता चल गया क्या है. कैपेसिटी ढूंढनी थी ना, Q पता चल गया. अब V पता है ना हमको 10 वोल्ट. तो आइए हम कैपेसिटेंस इक्वेशन यूज करते हैं. Q इज इक्वल टू वेरी चार्मिंग इक्वेशन, Q इज इक्वल टू VC और C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V. Q मिल गया हमको, डाल देते हैं यहाँ पे 1.6 10⁻−7. वोल्टेज कितनी है? 10 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻−8. So it will become 1.6 into 10⁻−8 farad. या हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 16 into 10⁻9 farad. And 10⁻9 farad is called nanofarad. So the capacitance of this capacitor is 16 nanofarad. याद है पिछली क्लास में क्या था? Units of capacitance is farad. Okay, let's do another interesting question. क्वेश्चन बोलता है, हमने आपको ये बताया था फैरेड बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है ना. सो और देखते हैं कितना बड़ा होता है फैरेड. व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स? व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कैपेसिटर? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 farad if the distance between the plates of the capacitor is 10 centimeter. तो हमको कहा गया कि हम एक कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 1 farad और वो जो दो प्लेट्स है ना उनका एरिया कितना होना चाहिए. अब ये हमने फिक्स कर दिया कि दो प्लेट्स के बीच में जो दूरी है ना उसको हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर्स. ओके, तो हमको क्या क्या मालूम? हम कैपेसिटेंस का एयर वाला कैपेसिटर नहीं, तो C naught is equal to epsilon naught A by D, right? So area of the plates क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं C naught D upon epsilon naught. ठीक है बेटो. अब कैपेसिटेंस तो है 1 farad, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में लिखेंगे तो 10⁻−1 मीटर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट किया. मैं क्या कर सकता हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ. ओके, तो 4 पाई से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, 4 पाई से डिवाइड किया. ऐसा क्यों? बिकॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे को आती है. कितनी होती है? 9 into 10⁻9. और ये 4 पाई आ गए यहाँ पे. 4 पाई into 10⁻−1 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख दिया? 9 into 10⁻9. So this becomes 9 4s are 36 pi into 10⁸ meter square. ये क्या है? Area of the plates. 36 pi is approximately 100. 100 into 10⁸. So area is 10⁻10 meter square. मान लो ये square plates होती, तो what would be the length side of one side of this? एरिया का होता है L square. L square is 10⁻10 meter square. So L कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10⁻10, that's 10⁵ मीटर. 10⁵ मीटर क्या मतलब? 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर टू बिग. मतलब अगर आपको 1 farad का कैपेसिटर बनाना है तो आपको मेटल प्लेट पता कितने साइज की चाहिए? 100. एक स्क्वायर प्लेट चाहिए 100 किलोमीटर लंबी, 100 किलोमीटर चौड़ी, और वो दो प्लेट्स के बीच का गैप रखना है आपको कितना? 10 सेंटीमीटर्स.
इतनी बड़ी प्लेटें लोगे, यहाँ से पठानकोट जितनी दूर और ऐसे ही चौड़ी, तो इतनी चौड़ी बड़ी प्लेट्स लोगे तब जाके बनेगा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 फैरेड। इसलिए हम नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड की बात करते हैं, बिकॉज 1 फैरेड इज टू बिग अ कैपेसिटर। आज तक हमने कभी बनाया भी नहीं इतना बड़ा कैपेसिटर। कंबाइन करके जोड़ जोड़ के कर सकते हैं, बट एक कैपेसिटर 1 फैरेड का इज वेरी वेरी लार्ज कैपेसिटी, राइट। तो हम फिर अगली क्लास में आपके साथ पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तब तक आप आज का काम जो है और आज जो हमने सीखा सिमुलेशन के थ्रू, उसको आप अच्छे से अपने मन में बिठाइए। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।